Dear students, Namaste, Sat Sri Akal, Walaikum Salam. Welcome to our section of Plus 2 Chemistry in the @Future Saver Academy channel, and we are discussing the JEE main questions of very important chapter of chemical kinetics. So let's start the question. The first question based on the activation energy, that how we calculate the activation energy. So now question is, first question, what is activation energy? Activation energy for a reaction if its rate डबल्स, जब इसकी रेट डबल हो जाएगी, किससे डबल हो जाएगी? टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 20 डिग्री से सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, रिएक्शन डबल हो जाएगी। और रेट आपने आर कांस्टेंट जो यूज़ करना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपने यूज़ करना है। तो इसके सोल्यूशन में हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फॉर दिस, हाउ टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन, देयर इज a formula you know to calculate the activation energy, and the formula is log, this is a log K2 over K1 EA activation energy over 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2. This is the formula based on the activation energy. So here we will calculate first of all log. Now its value is log K2, rate constant becomes double, so that means K2 becomes 2K1 double, K1 as it is. Activation energy we want to calculate 2.303 as it is, and what is R? R is actually 8.314, and temperature students become 20 to 35, तो 20 से 35 हो जाएगा। तो केल्विन में कन्वर्ट कर दो, 20 में से 273 ऐड कर दो, वो हो गया 293, और दूसरा टेम्परेचर आपका 35 है, 35 को आप 273 को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 308। तो दिस इज K1 कैंसल, log 2 यू वैल्यू नो, आपको वैल्यू पता है log 2 की इतनी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे ही आ गया, और बाकी जो बच गया आपका 2.303 इंटू 8.314, और आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके 293 और 308 को एलसीएम ले लोगे, और 308 इधर चला जाएगा माइनस 293, एंड दिस इज नाउ एक्टिवेशन एनर्जी। हाउ टू वी कैलकुलेट? 2.30383.1 इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, 0.3014 इंटू 2.303 इंटू 8.314, और ये भी आपका 293 और 308 भी मल्टीप्लाई हो गया, और 308 में से जो 293 माइनस करके आएगा, जो 15 आएगा उसके साथ डिवाइड कर दो, तो वहाँ पर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 34,000 सॉल्व करके कितना आ जाएगा? जूल पर मोल, जिसे हम किलो जूल में कैसे लिख सकते हैं 1000 के साथ डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा आपका 34.7 किलो जूल पर मोल। This is the way to how to calculate the activation energy. Very interesting, very easy. So remember this the formula, log K2 over K1 EA over 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2. Then the next question for the after plus 2, when we appear for the JEE exams or for the AIEEE exam or any NEET exam, mainly special for the JEE means question. This is a very important question. The next question is, in a first order reaction, this is in a first order reaction student, 80% of the reactant, 80% of the reactant was reduced, वो कम होके 80% के कितनी हो गई है? 8% होगी, कितने सेकंड में? इन 4606 सेकंड्स। यहाँ पे डिक्रीज होगी वह। रेट कांस्टेंट आपने कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट के क्या होगा? तो फॉर दिस वी विल राइट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस रेशन।
and this is the relation. This you know for the first order, k is equal to 2.303 upon t, and it's a log of initial concentration r नॉट रिएक्टेंट्स की ओवर r आ गया आपका जो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है आपने, इट इज 2.303 ओवर टी। आपका टाइम कितना लग गया, आप इसको लिख दो 4606 सेकंड हो गए। और लॉग आपका, तो पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 80% से है, वो रिड्यूस होकर कितनी रह गई आपकी 8। वो लॉग 80 से कितनी होगी आपकी 8 आ गई। तो 8 को 80 से डिवाइड कर दो, 10 आ गया। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2.036 को 4606 के साथ डिवाइड कर दो आप। लॉग 10 की 1 वैल्यू होती है, तो ये आ गया आंसर आपका 5.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ पर सेकंड। दिस इज द रिलेशन फॉर द rate constant or the answer for the rate constant, right? And after that, student, one more important numerical type question is for the activation energy. So let's see its relation. Activation energy, the activation energy of a reaction determined, the activation energy जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी, वो डिटरमिन होती है किससे, स्लोप ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ्स, बाय स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। 4 ऑप्शन है आपको, स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो कहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कैलकुलेट होगी वो हमने देखना है। हाँ जी, तो आपको रेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी का कौन सा रेशन है आपका। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए K होता है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू A फैक्टर e रेज़ टू पावर एक्टिवेशन एनर्जी माइनस A ओवर अब RT। इसको थोड़ा सा लॉग ले लो, नेचुरल लॉग, दोनों तरफ से नेचुरल लॉग ले लिया, ये बन गया लॉग A प्लस लॉग e रेज़ टू पावर माइनस A RT। ये कैसे बन गया आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो 2 टर्म है, एक ये और ये, जब इस पर लॉग लगाएंगे तो ये एक टर्म अलग अलग हो जाएगी, लॉग ln ऑफ ए इसके ऊपर लग जाएगा और दूसरे उसके तरफ लग जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका ln ऑफ k और ये बन गया आपका ln ऑफ a, एंड ये आपकी टर्म जो आगे है पावर है ना e अपॉन RT, वो आगे आ जाएगी और ln ऑफ e कितना हो जाएगा 1। तो आपने यहाँ पर ln ऑफ k, ये इसका ग्राफ किसके साथ डिस्कस करना है, 1/t के साथ। ये 1/t है आपका, ये 1/t और ये है ln ऑफ k। तो रिलेशन फॉर दिस ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका सीधा सीधा ये बन जाएगा माइनस ई अपॉन आर। तो यहाँ पर पता है ना आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ जो रिलेशन को कंपेयर करेंगे, तो y की जगह पे आपका आ गया ln ऑफ के, c आपका इंटरसेप्ट होता है वो बन गया आपका log a ln ऑफ a, और आपका जो 1x है ना x, वहां पर आ गया 1/t, x के ऊपर 1/t आ गया। जो m है उसे स्लोप बोलते हैं, m होता है स्लोप विच इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर। तो ये आपका चैनल है @फ्यूचर सेवर एकेडमी, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल डिस्कस द मोर क्वेश्चंस नाउ। लेट्स सी। यस, क्वेश्चन है आपका, व्हाट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज डबल्ड, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं, रिएक्टेंट की डबल हो जाए, रिएक्टेंट इज डबल्ड, जब उसकी डबल हो जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, देन हाफ लाइफ पीरियड अफेक्ट नहीं होगा। इट्स हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर रिएक्शंस इनिशियल कंसंट्रेशन वो डबल हो जाती है। तो यस, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं हम। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ पीरियड आपको मालूम है सोल्यूशन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इसके लिए हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसका रिलेशन बताता है। हम देखते हैं, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ,
हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशन क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.0693 डिवाइडेड बाय के रेट कांस्टेंट। तो ये रिलेशन होता है 0.0 सॉरी नहीं 0.693। तो हाफ फॉर द फर्स्ट order reaction time period does not depend upon the concentration, so this order will be the first order, इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा। ये आपका न्यूमेरिकल बन गया। आगे है वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप देखते रहना कैटलिस्ट का क्वेश्चन, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है रिएक्शंस को। तो फर्स्ट है आपका द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट, आप देखते हैं स्टूडेंट, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट, हाँ जी, द एडिशन कैटलिस्ट की ऐड करना, कैटलिस्ट को जोड़ना, कैटलिस्ट को ऐड करना ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस अल्टर विच और फॉलोइंग क्वांटिटीज, किस क्वांटिटीज को वो अफेक्ट करेगा, अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो कौन सी क्वांटिटीज को अफेक्ट करेगा, मैं चार ऑप्शंस आपको लिख देता हूं। वो है, पहली है एंथैल्पी, फिर है एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी, फिर आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, और तीसरा चौथा है एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी को इफेक्ट करेगा या इंटरनल एनर्जी को इफेक्ट करेगा। हाँ जी, ये देखना है आप अपने। तो जो आपका कैटलिस्ट होता है कोई भी, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट हो गया, वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट हो गया, जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो आपको मालूम है कि जो एक बैरियर कवर करना पड़ता है रिएक्शंस को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए जिस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी बी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज कैटलिस्ट ने क्या करना है, उसको थोड़ी सी पावर दे देनी है, उसको थोड़ी सी हिम्मत दे देनी है ताकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाएं, और एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए। दैट्स द आंसर। आगे आपका क्वेश्चन, द रेट और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्वेश्चन आपका देखते हैं, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतनी है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको। द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है वो है आपकी स्टूडेंट 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये है आपकी रेट, कहां पर, 10 सेकंड्स के ऊपर, 10 सेकंड्स, एंड फिर हो जाती है 20 सेकंड के ऊपर 0.03 एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाती है एट 20 सेकंड आफ्टर द इनिशियल रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, क्वेश्चन है इसका, हाफ लाइफ पीरियड इसके लिए क्या होगा। तो रेट आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दो आपको रेट दी हुई है, तो दो रेट से हमें एक्सप्रेशंस कैलकुलेट कर लेना है। यहां पर आपका के जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए होता है वेरी सिंपल, 2.03 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम चेंज, सॉरी T2 माइनस T1 होता है ना, T होता है, तो T आपका कितना हो गया 20 सेकंड माइनस 10 सेकंड, एंड लॉग ऑफ आपकी जो है रिएक्शन की यहाँ पर जो रेट है K2 ओवर K1 का वो हो गया 0.04 ओवर 0.03। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है। K बन गया आपका 2.303 ओवर 20 माइनस 10, 10 हो गया आपका, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स ओवर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर 4 ओवर 3 हो गई, और लॉग 4 ओवर 3 होता है आपका लॉग 1.33 स्टूडेंट। तो 13 का 3 में देख के और 2.303 को मल्टीप्लाई करके और 10 के साथ डिवाइड करके जो k की वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूं, वो है 0.0287 पर सेकंड।
Now we want to calculate the half-life period. Half-life period, the relation for the first order reaction is 0.693 upon K. So it is 0.693 divided by K is 0.0287. So after solving, half-life period will become 24.1 second. So these are the very important examination point of view जेई मेंस क्वेश्चंस आने वाले दिन में और क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा आपको ट्रेजर देने जा रहे हैं, तो इसको जरूर आप अपना लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए स्टूडेंट हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।